الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق بشير النذير القدير، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت سنیت کی جان بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ الرحمہ بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اتنی ہی طاقت ہے آپ کے پاس۔ یار آج تو کتنے ایسے آدمی ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے نا؟ اگر سروے کیا جائے تو بہت سارے ایسے آدمی ملیں گے جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس پیر نہیں ہے۔ ایک بزرگ ایک راستے سے جا رہے تھے، ان کے پیر میں جوتے نہیں تھے۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ، اے کاش میرے پاؤں میں جوتے ہوتے تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ کچھ دور جانے کے بعد میں انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جن کے ایک پیر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بزرگ نے اللہ کا شکر ادا کیا: اے اللہ، تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے پیر تو سلامت رکھے، تو نے میرے پیر تو سلامت رکھے، ورنہ اس کے تو پیر ہی نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو بول نہیں پاتے ہیں، بولنے کی طاقت نہیں ہے ان کے اندر۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو سن نہیں سکتے ہیں، وہ مشین لگائیں پھر بھی نہیں سن پا رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اے غیور مسلمانوں، جن کے پیر سلامت نہیں ہیں، ان کے دل کی بھی ایک آرزو ہے کہ آج جیتا پور بازار میں نبی کا جشن ہو رہا ہے، آمنہ کے لال کا میلاد منایا جا رہا ہے، مدینے کے تاجدار کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اے کاش میرا پیر سلامت ہوتا تو میں بھی مصطفیٰ کے میلاد میں چلا جاتا۔ آج اگر میرے پیر چلنے کے قابل ہوتے تو میں مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد میں جا کر کے آمنہ کے لال کے جلسے کو سن کر کے آتا۔ آج جس کا ہاتھ سلامت نہیں ہے وہ اس گھٹن میں اپنی چارپائی پہ پڑا ہوا ہے۔ اے کاش آج اگر میرا ہاتھ سلامت ہوتا تو میں بھی جاتا اس جشن مصطفیٰ میں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ کہتا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نبی کا نعرہ لگاتا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیتا۔ آج جس کی آنکھیں سلامت نہیں ہیں وہ اس گھٹن میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اے کاش میری آنکھیں سلامت ہوتی، میں بھی جلسے میں جاتا، علماء کے چہرے کو دیکھتا، کبھی وقت آتا تو ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی وقت آتا تو اپنے دادا کے چہرے کو دیکھتا، کبھی وقت آتا تو مصحف قرآن کو دیکھتا، کبھی وقت آتا تو اللہ کے گھر کا دیدار کرتا۔ آج جس کے کان
कान सलामत नहीं है, वो इस घुटन में अपने जिंदगी को गुजार रहे हैं। ऐ काश अगर मेरे कान सलामत होते, मैं भी मुस्तफा जान रहमत के जिक्र को सुनता। आमिना के लाल का याद जो मनाई जा रही है, उनकी नाते मुस्तफा को सुनता, मैं मुस्तफा के जिक्र को सुनता। आज जिसके छप्पर नहीं है, आज जिसके यहाँ आशियाना नहीं है, आज जिसके यहाँ छत नहीं है, वो जब ठंडियों का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, वो अपना सर छुपाने के लिए कभी तिरपाल का सहारा लेता है, कभी कुटिये का सहारा लेता है। लेकिन गयूर मुसलमानों, रब ने तो तुम्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी दे दिया है। आज जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, वो इस घुटन में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि दिन भर जब रिक्शा चलाते हैं तो शाम को उनके यहाँ चूल्हा जलता है, दिन भर जब मिट्टी काटते हैं तो शाम को चंद रोटियों का इंतजाम होता है, दिन भर जब मजदूरी करते हैं तो शाम को चंद रोटियां घर में पकने का इंतजाम होता है। और अगर बाप बीमार हो जाए तो बेटा अलग भूखे पर मर रहा है, बेटियां अलग भूखी हुई है, बीवी अलग भूखी है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, ऐ जैतापुर के सुन्नी जियाले मुसलमानों, रब ने तुम्हें क्या नहीं दिया है? पैर रब ने तुम्हें दिया है, हाथ रब ने तुम्हें दिया है, कान रब ने तुम्हें दिया है, जबान रब ने तुम्हें दिया है, सुनने की ताकत रब ने तुम्हें दिया है। याद रखो, जिस रब ने चलने की ताकत दिया है वो पैरों को लेना जानता है, जिसने हाथ दिया है वो हाथ लेना जानता है, जिसने जबान दिया है वो जबान लेना जानता है, जिसने कान दिया है वो कान लेना जानता है, जिसने घर दिया है वो घरों को तोड़ना जानता है, जिसने बैंक बैलेंस दिया है वो उसे खत्म करना जानता है। याद रखो, जो रब तुम्हें उठाना जानता है वो रब तुम्हें गिराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नी जी आले मुसलमानों, याद रखो मेरे रब ने सब तुम्हें दिया है। एक नेमत की अगर शुक्रिया अदा करना चाहो नहीं अदा कर सकते। कल मैदान महशर में एक आदमी जिसके आमाल का मुवाजना होगा, मीज़ान अमल कायम किया जाएगा, सबके आमाल को तोला जाएगा, सबके आमाल। कितनी तूने नमाजें पढ़ी है, कितना रोजा रखा है, कितने हज किए, कितना ज़कात दिया है, सब सामने होगा। रब कुरान में फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा उसको, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसको देखेगा। तुम क्या समझते हो छुप करके हम चोरी कर लेंगे, रब नहीं देख रहा है माज़अल्लाह? छुप करके हम ज़िनाकारी कर लेंगे, रब नहीं देख रहा है माज़अल्लाह? छुप करके हम सूद ब्याज खा लेंगे तो क्या रब नहीं देख रहा है? अल्लाह ताला की नजर से तो तुम्हारे दिलों के भेद भी जो है वो पोशीदा नहीं है। मेरा रब तो वो है कि इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह तुम्हारे दिलों के भेदों को भी जानता है, वो दिलों की कैफियत से भी वाकिफ है। आज कितने लोग, शुरू में जब मैं आया ये पूरा पिंडाल भरा हुआ था, लेकिन चले गए, वो चले गए, खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए, कुछ नहीं लेकर के गए, कुछ नहीं लेकर के गए। लेकिन गयूर मुसलमानों, याद रखो ऐसे महफिलों में सब नहीं आते, सब ने। ऐसा नहीं है कि इस जैतापुर के इस अजीम आबादी के अंदर फकत कितने ही लोग हों, नहीं, बहुत सारे लोग, लेकिन सब नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो समझ रहे हैं मैं नहीं गया। आज अपने बिस्तरों पर लेट करके वो ये समझते हैं कि मैं मुस्तफा के मिलाद में नहीं गया हूँ, चंदा तो दे दिया हूँ लेकिन मैं मिलाद में नहीं गया, मैंने 100 रुपया तो दे दिया है लेकिन मिलाद जो है वो अपने घर पे लेट करके हम सुन लेंगे। वो अपने घरों पे बिस्तरों पे लेट करके सुनते नजर आते हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हम नहीं गए हैं। नहीं नहीं, लेकिन बल्कि इस पंडाल में आने वालों, तुम अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। वो तो समझ रहे हैं कि
हम नहीं गए हैं, बल्कि उन्हें मालूम नहीं है, वो उनकी समझ यह है कि हम नहीं गए हैं, बल्कि हकीकत तो यह है कि आमिना के लाल ने बुलाया ही नहीं है, मदीने के ताजदार ने बुलाया ही नहीं है, अनीसुल गरीबीन ने बुलाया ही नहीं है, मुरादुल मुश्ताकीन ने बुलाया ही नहीं है, ताहा व यासीन ने बुलाया ही नहीं है, सिराजम मुनीर ने बुलाया ही नहीं है। तभी तो एक आशिक रसूल ने कहा था कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म की बात है, ये बड़े नसीब के। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलों में बहुत अच्छा पैगाम, ऐसी महफिलों में सब नहीं आते, सब नहीं आते हैं, जिन्हें बुलाया जाता है वही आते हैं। आज जब इलेक्शन का पीरियड आता है, मैं अक्सर इसको अक्सर महफिल में कहा करता हूं, मेरे आका फरमाते हैं कि जो मन अहब्ब शैअन फअक्सर ज़िक्रुहु, जो जिससे जितनी मोहब्बत करता है उतनी ही ज्यादा उसका जिक्र करता है, उतनी ही ज्यादा उसका नाम लेता है, उतनी ही ज्यादा उसका जिक्र करता है। आज आप इलेक्शन की पीरियड को देखो कि जब इलेक्शन का पीरियड आता है तो जो जिस पार्टी का आदमी होता है वो उसी पार्टी में जाता है। अगर कोई बीजेपी का है तो वो उसी की पार्टी में उसी के रैली में जाएगा, अगर कोई कांग्रेसी है तो वो उसी के रैली में जाएगा, अगर कोई बहुजन समाज पार्टी का है तो वो उसी के रैली में जाएगा, अगर कोई समाजवादी का है तो वो उसी रैली में जाएगा, अगर कोई आम आदमी पार्टी का है तो वो उसी के रैली में जाएगा, अगर कोई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का है तो वो उसी की रैली में जाएगा और उसकी पार्टी का झंडा अपने घर के ऊपर लगा लेगा और उसकी रैलियों में जाता नजर आएगा। लेकिन ऐ जैतापुर के गयूर जो सुन्नी जियाले मुसलमानों, आज तुम लोगों ने जो है आमिना के लाल के जलसे को मना करके, मदीने के ताजदार के जश्न को मना करके, अनीसुल गरीबीन के जश्न को मना करके पूरी दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हो। ऐ दुनिया वालों सुन लो, वो और होंगे जो कोई दुनियादारों की पार्टी में जाते हैं और जब उनके इलेक्शन का पीरियड आता है तो उनके नाम का झंडा घर पे लगा लेते हैं। लेकिन आज तुम लोगों ने ये झंडियां लगा करके, ये घरों पे नबी का अलम लहरा करके, ये डेकोरेशन करके और पूरी दुनिया वालों को बता दिए हो, ऐ दुनिया वालों सुन लो, हम किसी दुनियादार की चौखट पे नहीं बिके हैं, बल्कि आमिना के लाल की चौखट पे बिके हैं, मदीने के ताजदार की चौखट पे बिके हैं, अनीसुल गरीबीन की चौखट पे बिके हैं और पूरी दुनिया रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहिब तबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बल्कि ऐ सुन्नी जियाले मुसलमानों, आज तुम लोगों ने आमिना का लाल जलसा मनाया है, मदीने के ताजदार का जलसा रचाया है, अनीसुल गरीबीन के जलसे को रचाया है। और अगर 500 रुपया दे दिया है तो कभी एहसान मत जिताना, बल्कि सुनो नबी नबी के यारे गार हैं, यारे मजार हैं। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मन अनफका दिरहमन अला क़िरात मौलिदिन नबी कान रफीकी फिल जन्ना। नबी के यारे गारो यारे मजार हैं वो सिद्दीक अकबर कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात पूरी दुनिया नबी के दरवाजे पे जाती है, लेकिन हिजरत की रात नबी सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे गए। वो सिद्दीक अकबर कहते हैं कि जिसने नबी के मिलाद में 1 रुपया खर्च किया, कल वो जन्नत में मेरा यार होगा, कल वो जन्नत में मेरा यार होगा, मेरा दोस्त होगा। और आगे सुने, खलीफे दोम है कौन? सैयदना उमर फारूक आजम है। वो फरमाते हैं मन अनफक दिरहमन अला क़िरात मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयल इस्लाम, कि जिसने नबी के मिलाद में 1 रुपया खर्च कर दिया। तो अब जरा ये पैगाम गौर से सुनना। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं मैं 1500 की बात नहीं करता, 1 रुपया की बात कर रहा हूँ। इस मिलाद में उतना ही सवाब उसे भी मिल रहा है जिसने 1 रुपया दिया है। 1000 देने वालों, रब ने तुम्हें नवाजा था, तुमने अपने एतबार से दे दिया है, लेकिन जिसने रिक्शा चला करके 100 रुपया शाम को यकजा किया था कि इससे बच्चों के पेट को भरेंगे, लेकिन जब नबी के मिलाद के लिए चंदा लेने के लिए गए तो उसने ये नहीं कहा है कि मैंने 100 रुपया 2 सवारियों को जब बिठाया था, अपने कलेजे की ताकत को लगा करके जब चढ़ाई पे मैं चढ़ा था तब जा करके ये 10 रुपये मिले थे। वो
अपनी ताकत को नहीं देखा, बल्कि उसने ये देखा कि मांगा किसके नाम पे जा रहा है, मांगा किसके नाम पे जा रहा है। अरे ये तो 10 रुपये की बात है, आमिना के लाल के नाम पे अगर जान मांगे तो जान दे दिया जाएगा, और ये यही कहेगा कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना होगा ये हमसे हरगिज नबी का जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, जिसने 1 रुपया खर्च किया है उसको भी उतना ही सवाब, इसलिए कि रब ने उस मिकदार में उसे अता किया था। और जिसने 1000 दिया है तो रब का एहसान उसके ऊपर ज्यादा है। रब ने जब उसे ज्यादा अता फरमाया तो उसको अल्लाह ने तौफीक भी दे दिया कि वो बढ़ चढ़ करके इस मिलाद में शिरकत कर ले। हजरत उमर फरमाते हैं, मन अनफका अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयल इस्लाम। हजरत उमर फरमाते हैं, जिसने नबी के मिलाद में 1 रुपया खर्च किया तो गोया कि उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। जिसने नबी के मिलाद में 1 रुपया खर्च किया तो गोया कि उसने इस्लाम को जिंदगी बख्श दी। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि जिसने नबी के मिलाद में 1 रुपया खर्च किया तो उसे शोहदाए बदर हुनैन की तरह सवाब मिलेगा, शोहदाए बदरो हुनैन की तरह सवाब मिलेगा। ए गयूर मुसलमानों, याद रखो, आज तूने आमिना के लाल के जश्न को मनाया है, मदीने के ताजदार के जश्न को मनाया है। यार, अपने आका के मिलाद को मना रहे हो, अपने नबी के मिलाद को मना रहे हो। ये सिर्फ तुम ही नहीं मना रहे हो, बल्कि हजरत आदम आए उन्होंने भी मनाया, हजरत नूह आए उन्होंने भी मनाया, हजरत शीश आए उन्होंने भी मनाया, हजरत जकरिया आए उन्होंने भी मनाया, हजरत दानियाल आए उन्होंने भी मनाया, हजरत यहया आए उन्होंने भी मिलाद किया, हजरत याकूब आए उन्होंने भी मिलाद किया, हजरत यूसुफ आए उन्होंने भी मिलाद किया, हजरत मूसा आए उन्होंने भी मिलाद किया, हजरत ईसा आए उन्होंने तो नबी का मिलाद इस तरह मनाया है कि आज हम अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, इमाम साहब ऐलान करते हैं आज फला जगह जलसा रखा गया है, नबी के मिलाद को मनाया जा रहा है, आप हजरात वहां तशरीफ लेके आए और अल्लाह और उसके रसूल की बातों को समाअत करें। ये ऐलान किया जाता है क्या कि नबी का मिलाद मनाया जाता है, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और मेरे आका और हजरत ईसा के दरमियान कितने साल का फासला है? तकरीबन 550 बरस का। कितना? 550 बरस का। 550 बरस का फासला है। इस दरमियान में कोई नबी नहीं आया, इस दरमियान कोई नबी नहीं आया। मेरे आका की आमद से 550 बरस पहले ईसा पैगंबर ने, हजरत रूहुल्लाह ने अपने आप ने इकट्ठा किया है अपने लोगों को, और यकजा करने के बाद में उन्होंने कहा था, ए लोगों सुनो, मेरे बाद एक नबी तशरीफ लाएंगे जिनका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह, जिनका नाम अहमद होगा। मेरे आका का आसमानों में नाम क्या है? अहमद है। और जमीन में नाम क्या है? मोहम्मद। क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार, नबी हमें मिला है। अल्लाहु अकबर। क्या कभी तुमने ये कहा था कि ए अल्लाह हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा करना? नहीं कहा था। लेकिन यार, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि मुस्लिम घराने में पैदा हुए और नबी की उम्मत बन गए। सुभान अल्लाह। जब इस उम्मत का जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया वो उम्मत नमाज पढ़ेगी 5 वक्त की सवाब 50 का दिया जाएगा। नमाज 5 वक्त की पढ़ेगी सवाब 50 का दिया जाएगा। उस उम्मत के बारे में रब फरमाएगा, उजीबु दाअवत दाई इदा दाआनी, मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ, शर्त यह है कोई सच्चे दिल से मुझे पुकार के तो देखे। अपने रब को सच्चे दिल से पुकार के तो देखो, रब तुम्हारी सारी जायज आरजुओं को बराबर फरमाने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जिक्र हुआ इस उम्मत का कि वो दुआ करेगी तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह उस उम्मत का मुझे नबी बना दे, ऐ अल्लाह उस उम्मत का मुझे क्या बना दे? नबी बना दे। रब ने फरमाया, मूसा वो उम्मत तुम्हारी हिस्से में नहीं, वो तो मैंने अपने महबूब को दे दिया। सुभान अल्लाह। वो तो मैंने अपने महबूब को दे दिया है, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दिया है। तो जानते हो हजरत मूसा का जवाब क्या था? ए मौला, तो फिर तू मुझे नबी ना बना। अल्लाह, नबूवत का मर्तबा कितना बड़ा है,
लेकिन फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अल्लाह फिर मुझे नबी ना बना, मुझे अपने महबूब का उम्मती ही बना दे, बेशक सुभान अल्लाह, अपने महबूब का उम्मती ही बना दे। ए सुन्नी जियाले मुसलमानों, तुमने कभी ये नहीं कहा था ए अल्लाह मुझे मुसलमान ही बनाना, ए अल्लाह मुझे नबी की उम्मत ही में बनाना, लेकिन रब ने तुम्हें अगर नबी दिया तो इमामुल अंबिया दिया है, अगर गौस दिया है तो गौस आजम दिया है, अगर वली दिया है तो वली आजम दिया है, अगर इमाम दिया है तो इमाम आजम दिया है। और आगे बढ़ करके देखो, अगर वक्त का इमाम दिया है तो इमाम अहमद रजा खान दिया है, अगर मुफ्ती दिया है तो मुफ्ती आजम दिया है, और अगर पीर दिया है तो अक्सर लोग जो ताजुल शरिया जैसा पीर पा गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, तुम्हारी खुशनसीबी है। तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला मुझे नबी ना बना, उस उम्मत का एक फर्द बना दे। ए गयूर मुसलमानों, आज तो तुम नबी के मिलाद को मनाने के लिए आए हो। हजरत ईसा पैगंबर ने अपने लोगों को यकजा किया, और यकजा करने के बाद में उन्होंने जिक्र किया, क्या कहा, ऐ मेरे लोगों सुनो, मेरे बाद एक नबी तशरीफ लाएंगे जिनका नाम अहमद होगा। क्या होगा? अहमद होगा। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुरान उठाएं, देखिए कुरान कहता है व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा पैगंबर ने अपने लोगों को यकजा किया। और मिलाद कहते किसको है? नबी के मोजज़ात का जिक्र हो, नबी के तसर्रुफात का जिक्र हो, नबी पाक के अय्यामे हमल का जिक्र हो, आपके अय्यामे रज़ात का जिक्र हो, आपके बचपने के वाक़यात बयान किए जाए, आपके कमालात बयान किए जाए, यही तो मिलाद है, यही तो मिलाद हुआ करता है। हजरत ईसा पैगंबर ने नबी के मिलाद को मनाया और कहा है कि ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे बाद आमिना का लाल आएगा, मेरे बाद मदीने के ताजदार आएंगे, मेरे बाद अनीसुल गरीबीन आएंगे, मेरे बाद मुरादुल मुश्ताकीन आएंगे, मेरे बाद ताहा व यासीन आएंगे, मेरे बाद सिराजम मुनीर आएंगे, मेरे बाद मक्की मदनी ताजदार आएंगे, मेरे बाद चार साजे दर्दमंदा आएंगे। कौन कह रहा है? ईसा पैगंबर कह रहे हैं, हजरत रूहुल्लाह कह रहे हैं कि मेरे बाद तशरीफ लाएंगे। कितने साल पहले कह रहे हैं? 550 बरस पहले कह रहे हैं। लेकिन आज 1450 बरस गुजरने के बाद जब जैतापुर वालों ने आमिना के लाल के मिलाद को मनाया है, मदीने के ताजदार के मिलाद को मनाया है, अनीसुल गरीबीन के मिलाद को मनाया है, तो ईसा पैगंबर ने तो ये कहा था कि ऐ लोगों मेरे बाद वो नबी अहमद आएंगे। लेकिन आज जब जैतापुर के इन आशिकों ने अपने नबी का मिलाद मनाया है तो ये नहीं कह रहे हैं कि आएंगे, बल्कि आला हजरत की जबान में कुछ यूं कह रहे हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कहता तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा दे काल सदका नूर का, नारियों का दौर था दिल चल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा गले।